So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, and verse number 25. But before we start, let's do a quick recap. So what happened till now? I'm going to share my screen first and then I'll do a recap. So what happened? What's happening is अभी ये 9th chapter हमने देखा. It is called the passing away of Bhishma Deva in presence of Lord Krishna. That is the name of the chapter. प्रभु आप वो मैसेज डाल दो उसमें ना. हाँ, तो इसमें हम लोगों ने देखा अम, जो पहले 11 वर्सेस जो थे उसमें भीष्म वेलकम्स एवरीवन असेंबल्ड एट द डेथ बेड अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, है ना. और फर्स्ट 4 वर्सेस में हमने देखा कि पांडवास, कृष्णा एंड सेजेस गो टू मीट भीष्मदेव. देन 5 to 8 ग्रेट सोल्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स असेंबल्ड, है ना. फिर 9 to 9 वर्स नंबर 9 to वर्स नंबर 11 में भीष्मा welcomed all, worshipped Krishna affectionately, and he spoke to Pandava affectionately, है ना. 12 to 13 uh, he sympathizes about their sufferings कि यार ये पांडवों ने इतना ज्यादा दुख झेला है ऑलरेडी, है ना. Then 14 and 15 influence of irreversible time, he spoke about time. And then 16 and 17 he accept Lord's inconceivable plan and he wants to follow it. And 18 to 20, Krishna is the original Narayan, inconceivable, understood only by Mahajans. है ना? फिर 21 to 23, कृष्णा हैज faultless qualities, कृष्णा की क्वालिटीज के बारे में उन्होंने बताया. एंड भक्ति योगा रिवील्स हिम एंड डिलीवर्स द डिवोटी, जो हमने देखा ना, भक्त्या माम अभिजानाति. 24th, जो लास्ट वीक प्रभु ने पढ़ाया, मे ही वेट फॉर मी एट द टाइम ऑफ माई डेथ. दिस इज अ एक्चुअल उनकी एक प्रेयर है. तो आज आज 25th से लेके 28 तक भीष्म देव विल इंस्ट्रक्ट युधिष्ठिर, है ना, अबाउट वेरियस धर्मास एंड purusharthas with historical examples, yeah? And then keep on going like that. So let's start Shrimad Bhagavatam 1.9.25. Sutta uvacha युधिष्ठिरास्तद आकर्ण्य शयान परिपंजरे आपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुश्रीवताम. Suta Goswami said, Maharaj Yudhishthir, after hearing Bhishma Deva speaking in that appealing tone, asked him in the presence of all the great rishis about the essential principle of various religious duties. So now Suta Goswami is saying, Maharaj Yudhishthir is going to ask him. Let's see what Srila Prabhupada speak about this thing in the purport. Who wants to read the purport? Hmm. Bhismadev speaking in that appealing tone convinced Maharaj Yudhishthir that he was very soon passing away, and Maharaj Yudhishthir was inspired by Lord Sri Krishna to ask him of the principle of religion. Lord Sri Krishna inspired Maharaj Yudhishthir to ask Bhismadeva in the presence of many great sages, indicating thereby that the Lord's devotee like Bhismadev, although apparently living as a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyasadeva. Another point is that Bhismadeva at the time was only lying on the deathbed of arrows, but was greatly aggrieved because of that state. One should not have asked him any question at the time, but Lord Sri Krishna wanted to prove that his pure devotees are always sound in a body and mind by dint of spiritual enlightenment, and thus in any circumstances uh, a devotee of the Lord is in perfect order to speak of the right way of life. Yudhishthir also preferred to solve his problematic question by asking Bhismadev rather than ask anyone else present there who was seemingly more learned than Bhismadeva. This is all due to the arrangement of the great will carrier Lord Sri Krishna, who established the glories of his devotees. The father liked to see the son become more famous than himself. The Lord declares very emphatically
that worship of his devotee is more valuable than the worship of the Lord himself. हरे कृष्णा, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्पट। अगर हम लोग सिर्फ ये पढ़ते, Suta Goswami said, Maharaj Yudhishthir, after hearing Bhishma speak in the appealing tone, asked him in the presence of all the great rishis about the essential principle of various religious duties. हमें कुछ समझ में नहीं आता, हाँ ठीक है, बोला उन्होंने, सोच लिया, बोला ना। शिला प्रभुपाद इससे कितनी सारी चीजें निकाल रहे हैं, and lot of people have given lot of lectures on this particular verse. एक्चुअली हो क्या रहा है कि भगवान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो भगवान करते हैं वो है ग्लोरीफाइंग हिज डिवोटीज। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, भगवान ऑलवेज ग्लोरीफाइंग डिवोटीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फिर हम लोगों को लगेगा कि क्यों करते हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि भगवान क्यों भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं? व्हाई इज ही ग्लोरीफाइंग डिवोटीज? व्हाट इज द नीड? व्हाई इज ही टीच, व्हाई डज ही ऑलवेज, क्या क्यों करते हैं, उनको क्या पड़ी है ग्लोरीज, डिवोटी को ग्लोरीफाई करना क्यों पसंद है उनको? प्रभु जी व्हाई जो डज, लास्ट लाइन में वर्स में लास्ट लाइन में दिखाया ना, बोला ना कि फादर गेट मोर प्लीज्ड व्हेन हिज यस, सन गेट मोर फेमस लाइक समवन दैट सो, इज करेक्ट, या दैट्स द दैट इज रीजन। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज ही इज अ सुप्रीम फादर, है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। Now, seed giving father, and as a father, he always want his sons and daughters to be glorified more and they should get more famous. That's one thing, है ना, एक aspect उसको देखने का ये है, which is very true, and Srila Prabhupada made it really clear in here. Another reason why, and is there any other reason? Any other reason why Krishna does it? Does glorify? एक तो ये reason है, और क्या reason है? प्रभु क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, हाँ और हाँ हाँ, लव बिल्कुल अफेक्शन है। बिल्कुल। और प्रभु ये भी एक रीजन है कि ही इज रिनाउंड। ये ही रेनाउंस, वो अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते, ही इज वांट्स, ये बिल्कुल सही, वो उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, यस। और एनीवन एल्स? ओके, वन थिंग जो मैंने इसमें लिखी है, आप लोगों के जो बोला है उसके अलावा जो मैंने एक चीज लिखी है इसमें, बिकॉज दो रीजन उसके और हैं। एक तो ही वांट्स टू टीच अस बाय एग्जाम्पल, ना, वो हमें क्या बता रहे हैं, दिस इज हाउ वी शुड डू, वी शुड actually spend more time in, we should spend more time in glorifying other devotees, we should glorify devotees, ये हमारा, हमको ये बताया जा रहा है, भगवान अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम लोग ना बड़े मटेरियलिस्टिक हैं, है ना। तो अगर कृष्णा के पद चिन्हों पे हम चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग भी ग्लोरीफाई करेंगे डिवोटीज को, डिवोटीज हमें भी ग्लोरीफाई करेंगे, और उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा ना। लेकिन एक समय ऐसा आ जाना चाहिए हमारी लाइफ में जिसमें हमारी कोई तारीफ करे तो हमें चुभे, इट शुड हर्ट अस, है ना। हर्ट मतलब इन द सेंस, ऐसा नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आए, लेकिन हमें लगे कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज एक्चुअली, इट इज मोर डेंजरस फॉर मी टू गेट ग्लोरीफाइड। नाउ ग्लोरिफिकेशन क्यों करा? अब एक और चीज है, भीष्म देव को इसमें उन्होंने सुपीरियर को बोल दिया, बोले ही इज सुपीरियर। आप सोचो, एक पर्सन डेथ बेड पर है, मरने वाला है, और हम लोगों ने पढ़ा था कितना दर्द होता है मरते वक्त इंसान को, 40, है ना, 42,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग एट द सेम टाइम, है ना। और वो किस पे लेटे हुए थे? तीरों की शैया पे। आप सोचो कि आपके कुछ चुभ जाता है, वो इसमें कांटा चुभ जाता है, वो ऐसे कहीं टच हो जाए, फांस चुभ जाती है ना थोड़ी सी, वो कहीं टच हो जाए तो कितना दर्द होता है। अब सोचो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आपके शरीर में घुसी हुई हैं और आप उस पे लेटे हुए हो, तो आपका वेट भी पड़ रहा है उस पे, तो कितना दर्द हो रहा होगा उनको, है ना। फिर भी ऐसे उसमें उनको बोल रहे हैं भैया तुम इनसे पूछो, भगवान उनको इंस्पायर कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, वो भी उस पे भी हम आएंगे। लेकिन भीष्म देव की सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं,
और वो जो हम लोग वर्स बार बार हम लोग वो करते हैं, नारायण पता परा सर्वे, है ना। मैंने बहुत बार बताया है, ये मेरे को बहुत पसंद है ये श्लोक। अ, जब महाराज चित्रकेतु, है ना, वृत्तासुर बनते हैं उससे पहले का ये है ना। सो महाराज चित्रकेतु जब जा रहे होते हैं प्लेन में अपनी रानियों के साथ, तो उन्होंने वो देखते हैं कि भगवान शिव जी पार्वती को गोद में बिठा के काफी सारे सेजिस को क्लास दे रहे होते हैं ऑन रिनाउंसिएशन पे, क्लास दे रहे हैं। और उनकी वाइफ, उनकी सबसे सबसे सुंदर जो मटीरियल वर्ल्ड में जो सबसे सुंदर लेडी है वो उनकी गोद में बैठी हुई है। और वो किस पे दे रहे हैं, रिनाउंसिएशन पे क्लास दे रहे हैं। तो महाराज चित्रकूट को थोड़ी सी हंसी आ गई। इनके दिमाग में ये था ये तो सिर्फ शिव जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इस तरह की चीज, है ना। लेकिन शिव जी को समझ में आ गया, शिव जी भी थोड़ा मुस्कुराए, जब वो मुस्कुराए शिव जी भी मुस्कुराए। लेकिन पार्वती माँ को बुरा लग गया, उन्होंने श्राप दे दिया, बोले तुमने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करी, तुम उन पे हंस रहे हो, यू डोंट डिजर्व दिस बॉडी। गंधर्व की जो तुम्हारे हायर प्लानिटरी सिस्टम वाली बॉडी है वो तुम्हें डिजर्व नहीं करते, गो एंड बिकम ए राक्षसा। देन ही सेड ओके, जो हुक्म, ऐसे करके सिर झुका के, एंड ही स्टिल स्माइलिंग एंड ही जस्ट बाउ डाउन एंड ही गोज। तो पार्वती माँ को लगता है यार, व्हाई इज ही नॉट, ही डिड नॉट रिटेलिएट, उसने मुझसे बहस भी नहीं करी। तो इस वक्त जो पूछते हैं ये कौन था बंदा, तो अम, शिव जी कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण परा होते हैं, जो नारायण के भक्त होते हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, उनको किसी चीज का डर नहीं होता। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। स्वर्ग और नरक और अपवर्ग, हाँ, उसमें कहीं पर उनको फर्क नहीं पड़ता। अपवर्ग, स्वर्ग तो हमें पता है क्या होता है, नरक हमें पता है, अपवर्ग का मतलब होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। मैंने शायद आप लोगों को बताया था अपवर्ग का मतलब क्या होता है, शायद आई थिंक मैंने इस क्लास में बताया था कि इंडिया में, बोल आई कांट रिमेम्बर मैंने इस क्लास में बताया था कि नहीं। वो यस यस, लास्ट क्लास, लास्ट इसी क्लास में बताया था अच्छा, आपने। इसी क्लास में बताया था, हाँ। तो अपवर्ग का मतलब होता है जहां पर हम लोग प प फ ब भ म, है ना, प से परिश्रम, है ना, ब से प फ, है ना, फ से फेना, परिश्रम करने से मुंह से झाग आ जाता है, प फ, ब भ भय, म से मरना, है ना। तो ये जो चीज होती है ये मटेरियल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। इसलिए इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड को प वर्ग बोलते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अपवर्ग बोलते हैं, अपर वर्ग। सो स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। तो वो स्वर्ग नरक सबको एक जैसा देखता है, कौन होता है, जो नारायण परा। अब क्या हुआ कि जब उस वक्त जब ये बात हुई, तो आप सोचो शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी इज ग्लोरीफाइंग महाराज चित्रकेतु, किस लिए, वो कह रहे हैं दिस इज द ग्लोरी ऑफ ए वैष्णवा, दिस इज ए ग्लोरी ऑफ ए डिवोटी। एंड दैट इज वाई भीष्म देव को देखो, बिकॉज ही इज नारायण परा, ही इज ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही न कुतश्चन बिबिति, कोई डर ही नहीं है उनको, ना ही डर है, ना ही दर्द है, ना ही कोई किसी चीज का कोई नेगेटिव इमोशन है ही नहीं उनको शरीर छोड़ने से, कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नाउ अब आप सोचो कि मैंने इसमें क्या लिखा है, लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड यूजेस वेरियस मीन्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी। अब अगर हम देखें हमारे शास्त्रों में या तो भगवान की तारीफ हो रही है या डिवोटीज की तारीफ हो रही है ना। और भगवान कैसे कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा वो कौन था, एक पर्सन था बर्बरीक। आप लोगों को पता है बर्बरीक के बारे में, बर्बरीक वॉज वेरी पावरफुल। उसके साथ ये था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके अगेंस्ट वो खड़ा खड़ा हो जाएगा ना, वो उसकी आदि शक्ति ले लेता था। ठीक है, तो वो मर नहीं सकता था। तो जब उनको पता चला, भगवान को पता चला कि ये बर्बरीक भी इसमें हिस्सा लेने आ रहा है, तो उन्होंने बर्बरीक का गला काट दिया। ठीक है ना, बर्बरीक का जो गला कट गया तो उसने बोला, बर्बरीक ने बोला कि अरे प्रभु, आप ना मेरे को गला काट दिया, कोई बात नहीं, बस मेरे को युद्ध देखना है।
युद्ध देखना है तो जब युद्ध खत्म हो गया तो बाद में जब सब लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोला आपने देखा कितना घमासान युद्ध हुआ, अर्जुन ने ये करा, अर्जुन ने वो करा। बोले अर्जुन ने क्या करा? मैं तो जहां से देख रहा था वहां से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था, और तो कुछ सब कुछ चक्र ही कर रहा था काम, और तो किसी ने कुछ करा ही नहीं। लेकिन पूरी सबसे ज्यादा ग्लोरी किसको दी गई है? पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा ग्लोरी मिली है अर्जुन को। ठीक है। अर्जुन बिकम ग्लोरियस नॉट बिकॉज, खैर वो तो डिवोटी तो खैर है ही, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, नॉट बिकॉज ऑफ टैलेंट, टैलेंटेड भी थे वो, बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड थे, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। he got glorified because भगवान has used him as a निमित्त मात्र भव भव सब साची। भगवान उनको क्या बोल रहे हैं? निमित्त मात्र बनो, यू जस्ट बिकम यू नो द वाया मीडियम। तो मैं आई एम गिविंग यू द क्रेडिट। तो जब अर्जुन को परेशानी हो गई थी, अर्जुन ने बोला था मेरे को नहीं लड़ना है, तो मैं नहीं मार सकता इनको। भगवान ने उनमें से एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था, भैया इनको मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, देखो तुम, विराट रूप में सब मेरे मुंह में चले गए, I've already killed them. I just want you to take the credit because भगवान wants devotees to take credit, है ना। तो पहले तो अर्जुन, अर्जुन का हमें देख लिया। और कौन कौन लोग हैं जिनको भगवान ने जिनको ग्लोरीफाई करा है? प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज, कई बार हम लोग पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज के एपिसोड, इतने सारी बार हम लोग सुनते हैं। यार प्रहलाद महाराज को कोई बोलेगा यार देखो भगवान के भक्त थे प्रहलाद महाराज, छोटे से थे, फिर भी भगवान ने उनको पहले क्यों नहीं बचाया जाके, जब उसको पहले क्यों नहीं उसको हिरण्यकशिपु को मार दिया, इतनी तकलीफें क्यों झेलने दी उनको, प्रहलाद महाराज को? अब उसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर प्रहलाद महाराज को पहले दिन ही जब उनको बोला था अरे इसको ले जाके मार दो, उसी दिन अगर भगवान आके हिरण्यकशिपु को मार देते तो प्रहलाद महाराज को ग्लोरी नहीं मिलती। क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन दिखता कैसे? तो प्रहलाद महाराज को जब ऊपर से फेंक देते थे, पहाड़ में से जब फेंका था उनको, ही वॉज फॉलिंग डाउन। उनके दिमाग में क्या चल रहा था? जा राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अब भगवान वांट्स टू किल मी, नो बडी कैन सेव मी। भगवान वांट्स टू सेव मी, नो बडी कैन किल मी। तो हम जैसे क्या है, हम लोग ऊपर से गिरेंगे तो हमारी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाएगी, ऐसे करके गिरेंगे। ही वॉज जस्ट नॉर्मल। वो नीचे जब गिरने वाले थे, इतनी दूर थे जमीन से, तब जाके भगवान ने उनको बचाया। 1% भी डर नहीं था उनको। क्यों? क्योंकि ही वॉज नारायण परा। एंड जब उन्होंने ये चीज शो करी, तब जाके हम लोग उनको बोलते हैं वाओ, लुक एट दिस, लुक एट हिम, है ना। आप सोचो, अभी जो महाराज आए थे, क्लासेस दी थी अपने मंदिर में, आप लोगों ने सुनी होंगी। उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि देखो, उन्होंने उसको क्या पॉइजन भी खिलाया, है ना, पॉइजन से भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम पॉइजन खिला, और पॉइजन पीने के बाद उनको कुछ हुआ ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? और पॉइजन नहीं, अब उन्होंने क्या, पॉइजन पी भी लिया। ऐसा नहीं कि पॉइजन है नहीं है मेरे को नहीं पीना है, ये लो मेरे को नहीं पीना है, और ऐसे कर रहे हो मेरे को छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं, चुपचाप उनको पॉइजन दिया, पी लिया, खत्म, कुछ भी नहीं हुआ उनको। उनको फिर जब आग में डाल दिया, कोई फर्क ही नहीं, बिल्कुल हंसते हंसते, है ना, भगवान का मंत्र करते करते आग में भी बैठ गया होलिका की गोदी में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई उनको, है ना। जब उनको सांपों के साथ छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनको, है ना। तो एंड में उनसे पूछा भैया तुम्हें इन सब से मर क्यों नहीं रहे हो? तो उसने बोला ये तो सब मेरे भाई बंधु ही हैं। कैसे? बोले जो सांप थे हैं वो हम, मेरे जो प्रभु हैं उन, वो उनकी शैया में लेटे हुए हैं। तो वो सांप मेरे को क्या करता, क्योंकि मैं उनके ध्यान में हूँ। तो उनका जो सांप जो शेषनाग है, वो मेरे को मरने कैसे देते, इसलिए मेरे को डर नहीं लगा वहां पर। फिर बोले कि उससे जहर जो पिया उससे डर नहीं लगा। बोले जहर भी मेरा भाई है। क्यों? बोले वो जो उसमें निकला था, क्या बोलते हैं, चर्निंग ऑफ द ओशन में जो वो निकला था विष, है ना। अब उसी ओशन में से लक्ष्मी माँ भी निकली थी, है ना। और लक्ष्मी माँ कौन है? वो मेरे आराध्य की वाइफ है ना। तो वो मेरी कौन हुई? वो तो मेरी आंटी हुई, है ना। तो वो मेरे को कैसे तो वो मेरी बहन, वो पॉइजन की बहन है ना। तो पॉइजन मेरा क्या करता, है ना, पॉइजन मेरा अंकल है। ऐसे करके उन्होंने सब लोगों के लिए बोला कि नोबडी कुड किल किल मी, है ना। तो
कहने का मतलब ये था कि अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स में उनको नहीं डालते तो उनका ग्लोरिफिकेशन कैसे करते? तो मित्र प्रभु, आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा है, इट इज टू ग्लोरीफाई यू एज ए डिवोटी, जस्ट हैंग इन देयर, है ना? सो एक्चुअली, और फिर उसके बाद चलो ठीक है, ये हो गया, हम प्रहलाद महाराज के बारे में हम समझ में आ गया। फिर उसके बाद और कौन थे जिनके साथ, क्योंकि हम लोग वी वांट टू एस्टेब्लिश कि भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा, और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ही इज ग्लोरीफाइंग, हाउ इज ही ग्लोरीफाइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोगों को भक्ति में जाना, इफ यू वांट टू बी भक्त, if you are trying to get into devotional service, we need to understand कि क्या हो सकता है हमारे साथ, है ना? क्या होगा? अब जैसे अम्बरीश महाराज के साथ क्या हुआ, अम्बरीश महाराज को भी, अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि ने वो अपने बाल निकाल के एक दानव बनाया था, वो मारने जा रहा था अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज चुप, हिले भी नहीं अपनी जगह से, ऐसे ना हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए। और उन्होंने ये सोचा, भगवान अगर आपको इस राक्षस के थ्रू मेरे को मरवाना है, मेरे को वैसे भी कोई नहीं बचा सकता, और अगर आपको बचाना है तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो आप सोचो, अम्बरीश महाराज को भी उस पोजीशन में डाला जहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, व्रत तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं, है ना? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। और उस कंफ्यूजन से जब उन वो निकले, उससे वो ग्लोरीफाई हुए। अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया, अर्जुन जब कंफ्यूजन से निकला तो वो भी ग्लोरीफाई हो गया, है ना? और चलो, कंफ्यूजन से करके लोगों को ग्लोरीफाई करा। दूसरा, सिंपल प्रॉब्लम्स में डाल के, है ना, अलग अलग लोगों को, अम्बरीश महाराज को इस प्रॉब्लम में डाला, प्रहलाद महाराज को दूसरी प्रॉब्लम्स में डाला, है ना? लेकिन उन्होंने इसलिए डाला, इसलिए नहीं डाला कि वो यू नो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार हमें लगता है, कई बार जैसे मेरी मम्मी भी हमें बोल देती हैं, बेटा आप चिंता मत करो, भगवान परीक्षा लेते हैं। अरे यार, हम हमारी औकात ही नहीं है भगवान हमारी परीक्षा ले, भगवान को पता है इसकी इसकी औकात कुछ भी नहीं है, इसको क्या परीक्षा दूं मैं? तो भगवान परीक्षा किसी की भी नहीं लेते, परीक्षा उनकी भी नहीं लेते हैं। जैसे कि मम्मी कह रही थी मुझे, जैसे अर्जुन अपनी टेस्ट में पास हो गया, प्रहलाद महाराज अपने टेस्ट में पास हुए, हमें भी होना है। मैंने कहा नहीं, हम लोग कैसे हो सकते हैं? वो एक्चुअली भगवान टेस्ट लेते ही नहीं है। भगवान क्या करते हैं, भगवान टेस्ट लेते ही नहीं है, भगवान ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए। तो एक बार, अभी देखो इसमें ज्यादा लोग हैं नहीं, तो मैं एक पास टाइम जो मैंने लास्ट टाइम बताने वाला था, मैंने नहीं बताया था, वो मैं अब बता सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, शिवजी को शिवजी सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड है। के शिवजी की जो वाइफ है पार्वती, वो पूरे मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं। व्हेन आई से मटेरियल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्लानिटरी सिस्टम्स, है ना, 14 प्लानिटरी सिस्टम, है ना, भू भुआ, भूलोक, भूवर्लोक, सॉरी, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, सारे, फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, सारे, इन सारों को मिला लो। और कई बार हमें लगता है ना, नीचे के जो प्लैनेट्स हैं उसमें ऑपुलेंस नहीं है, नहीं, जो नीचे के ऑपुलेंस है ना, ये जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, इसमें पृथ्वी से अरबों खरबों गुना ज्यादा मटेरियल ऑपुलेंस है। एक पृथ्वी है जो गरीब है है ना? बाकी सब अमीर हैं, सब बहुत ही हाईली, नीचे वाले भी हमसे बहुत हाई हैं, और ऊपर वाले तो नीचे वाले से भी हाई है। हाँ, है ना, ये जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये सारे तो और भी ज्यादा हाई है ना, उनमें तो और भी ऑपुलेंस है। लेकिन जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम है वो भी बहुत ऑपुलेंट है ना? अरे मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। व्हाट वाज द लिंक, व्हाई वाज आई सेइंग दैट? मुझे शिव जी के हाँ, बारे में। शिव जी, हाँ। सो शिव जी, तो एक बार क्या हुआ, शिव जी पूरे इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी उनसे सुंदर नहीं है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट, अप्सराओं को ले लो, गंधर्व सबको ले लो, सब, पार्वती माँ जो है, शी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो लेकिन वो शिव जी के साथ है, शिव जी को उनसे भी वो आसक्ति नहीं है ना? अपनी वाइफ जो सबसे सुंदर, उनसे भी आसक्ति नहीं है, यही दिखाने के लिए उनसे उनकी शादी हुई है। एनीवे, तो एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट में भगवान मोह अब वो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लेडी का, नारायण ने उनकी बहुत सुंदर लेडी का रूप बनाया और शिव जी के सामने आए। शिव जी बिकेम सो बिविल्डर्ड, ही वांटेड टू ही वांटेड टू एंजॉय
that Narayan ko, and he started running behind her, है ना? And he was running, and his sperms were coming out. He was ejaculating while he was running. So, and everybody was watching it. Oh my goodness, what happened to Shivji? And suddenly Narayan changed to Narayan. And as soon as he realized, oh, what happened? You know what Shivji did? Ordinarily, हम लोग क्या करेंगे? Oh यार, शर्म आ गई, सब लोग देख रहे हैं, where do I go and put my head? I'm never gonna leave my place. No, he was dancing. Shivji was dancing and dancing and dancing. And he said, Prabhu, I am so grateful that you used me to tell everyone that you are so powerful, that someone like me can lose all composure. आप सोचो, how insulting, that insult has no meaning, because he thinks that that insult, that he didn't even think of it as an insult. उनको क्या लगा, अरे वाह यार, भगवान ने मेरे को यूज करा. I'm not even I'm no one, and he's using me as an example. So he was jubilant, and this is how नारायण परा जो होते हैं, जो भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं, दिस इज हाउ दे हैव नो फियर. फियर का मतलब ये नहीं है, फियर ऑफ डेथ का मतलब नहीं है, फियर ऑफ हार्म हार्म का मतलब नहीं है, फियर ऑफ एनीथिंग. दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ बीइंग यूज्ड अप एज ए, लेकिन कुछ भी, मतलब कुछ भी बना दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. उनकी इंसल्ट कर दो, कुछ भी कर लो, बट डू इट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. So Shivji was dancing in ecstasy, saying that thank you, Lord, you have used me to show the world that if you want to seduce someone, someone like me has no chance. Shivji is the most renounced person in the whole, world. And if he has no control, imagine how bewildering is, Maya, how bewildering is apna Narayan. So he was really, really Shivji. This is why I'm saying that this is Lord Shiva. When you look at Lord Shiva, he is glorified through what? Through this act. अब हम लोग ये वाला जो एपिसोड है, it is written in भागवतम, it is written in शिव पुराण, is written in lot of different scriptures, lot of पुराणों में लिखा है. But we don't talk about it. सब लोगों को बताएंगे, people get offended, यार, how शिव जी को तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, ये वो. But it is a true incident. And Shivji was, this incident was not to put Shivji down. This incident was to tell, show people this is how a bhakta reacts. A bhakt reacts like this. If he is, उनको तो people, जो devotees होते हैं, they real devotee. I'm talking about the pure devotees. They don't care about, you know, um, अपमान और ये नाम शोर. They don't worry about name, fame, glorification, nothing. They have no problem with getting insulted, nothing. But we should not, us, because we are not devotees, we are aspiring devotees. So when we are aspiring devotees, we still, our needs still need to be fulfilled. For example, Mitul Prabhu, अब मैं आपके पास आता हूँ. If you are my best, really good friend, मैं आपके पास आता हूँ और मेरे साथ थोड़ा सा बुरा हो रहा है, मैं आपके पास आके बताता हूँ, यार मितुल प्रभु, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है. मितुल प्रभु, हट, क्यों परेशान हो रहे हो? कर्मा है आपका, भुगतते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कर्मा है, भुगो. भुगतो, आपने करा है, खुद ने करा है, भुगतना पड़ेगा आपको. बात ठीक है. करना करा मैंने ही है, कर्मा मेरे ही है. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू मितुल प्रभु टू, कि वो मुझे, ही कैन टेल मी ऑफ. आई एम गोइंग देयर वेयर मितुल प्रभु से, कम हियर प्रभु, कम, आई विल गिव यू हग. It's okay, Prabhu. It's okay. Look, this time will pass. We'll pray. We'll pray to Krishna. I'll pray for Krishna. I will pray for you to Krishna. Okay, Prabhu? It'll be all good. Don't stress. Kyun? Because I am not at the stage of bhakta. I'm not stage of pure devotee. I still need someone to tell me. I still need someone to, hold me. I'm not at that stage. But that this is why, this is where we have to go, this is what we have to achieve, the way Ambrish Maharaj will became. That's okay. जो है वो है. ब्रह्मा विमोहन लीला, आपको पता है, ब्रह्मा इज ए पोस्ट, ठीक है. एवरी टाइम, every 100 years, Brahma changes. Hmm. And
देर इज अ क्वालिफिकेशन टू बिकम ए ब्रह्मा. अगर कोई भी जीव क्वालिफाइड नहीं है, ये ब्रह्मा का टाइम हो गया, 100 साल पूरे हो गए, ही हैज टू डाई. है ना, जब ब्रह्मा की डेथ होती है तो जो नए ब्रह्मा आते हैं किसी दूसरे जीव को मिलता है. अगर कोई जीव क्वालिफाइड है ही नहीं तो भगवान खुद ही ब्रह्मा बन के आते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्मा है अभी राइट नाउ, जो इस जिनके एरा में हम लोग रह रहे हैं अभी, ये जो ब्रह्मा है ये भगवान के प्योर डिवोटी हैं. ठीक है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी यूज करा. है ना, कैसे यूज करा? ब्रह्मा विमोहन लीला में. आप सोचो, सोचना है बात, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है. भगवान जब गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनके नाभि में से कमल निकला, उसमें वो आए, पैदा हुए ब्रह्मा जी. फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला, चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाया. फिर उनको बोला आप सृष्टि की रचना करो. तो उन्होंने भगवान को खूब प्रे करा उस वक्त. है ना, ब्रह्म संहिता की प्रेयर से. उसमें ब्रह्मा जी ने एक प्रेयर में ये भी बोला कि यार भगवान, आपने मुझे बोला सृष्टि की रचना करना, प्लीज मेरे को शक्ति दो कि मैं घमंड ना करूं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है इस, क्योंकि ही इज सेल्फ बॉर्न. उन वो किसी माँ के पेट से नहीं निकल के आए. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. है ना, फर्स्ट पर्सन ऑन द होल मटेरियल वर्ल्ड. तो कहते हैं मेरे को घमंड आ जाएगा तो प्लीज मेरी हेल्प करना, मेरे को घमंड ना है, वो ये बोलते हैं. तो किससे बात कर रहे हैं सारे? भगवान से बात कर रहे हैं. एंड देन व्हेन भगवान कम्स एट कृष्णा, उनको पहचानेंगे नहीं. हाउ स्टूपिड इज दैट. यार वो उन्हीं के कहने पे सब कुछ बना है, वही उनको गाइड भी कर रहे हैं हमेशा. वो हर बार भाग भाग के नारायण के पास पहुंच जाते हैं. है ना. And when Krishna came, how wouldn't he know? He didn't know. He knew. But the thing is, because of Yoga Maya, क्या हुआ कि उनको भूल गए वो कि भगवान कौन है. और फिर उन्होंने डाउट करा कि अरे छोटा सा बच्चा भगवान कैसे हो सकता है, ये तो सामने अपने दोस्त के मुंह में से चावल निकाल के खा रहा है. हम तो भगवान को झूठे हाथ से टच नहीं करते हैं भगवान को. हमारा मुंह झूठा होता है तो भगवान के सामने नहीं जाते हम लोग. तो ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो दूसरे के मुंह में उंगली डाल के उसमें से खाना निकाल के खा रहे हैं, वो भी उल्टे हाथ से खा रहे हैं. इट्स नो एटिकेट. एनीवे, लेकिन वो कैसे बिविल्डर हो गए? बिकॉज भगवान चाहते थे कि वो बिविल्डर हो. भगवान चाहते थे कि, बट क्या हुआ उसके बाद? व्हेन ब्रह्मा को समझ में आया, ही गेव अमेजिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड, एंड दोज प्रेयर्स आर ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड. बट हु इज डूइंग दैट? Brahma ji. And we are reading those glorification, and because we are reading those glorification, we are glorifying Brahma to compose such amazing prayers. So who is getting glorified? Brahma is getting glorified, but he is being used to get glorified. ठीक है. उसके बाद हनुमान जी. है ना, हनुमान जी got glorified because he was an amazing, he was just amazing. भगवान ने उनको यूज करा टू बिल्ड द ब्रिज. भगवान ने बोला अरे मेरी सीता को ढूंढ के लाओ. यार, जो त्रिलोक के स्वामी हैं उनको ये नहीं पता है कि उनकी बीवी को कौन लेके गया? उनको ये नहीं पता है रावण कहाँ रहता है? उनको रावण कौन है उनको पता है, जय विजय, सब कुछ पता है. फिर भी उन्होंने हनुमान को यूज करा. हनुमान को यूज करने का मतलब ये था, हु पूरे रामायण में आफ्टर रामचंद्र जी, हु इज द हीरो? हनुमान जी. ही इज द हीरो. ही इज द हीरो ऑफ द होल रामायण. होल एपिक रामायण के जो हीरो हैं वो है हनुमान जी. After Ram, obviously, Ram is the main character, but who everywhere, Hanuman is everywhere. Everywhere is Hanuman. और क्यों करा वो? Because हनुमान जी का जो डिवोशन इतना प्योर है कि श्री रामचंद्र जी wanted to show it to the world, this is the purity of my devotee. And that's why उनको सारे के सारे डिफिकल्ट काम उन्हीं को दे दिए गए. अब कोई नहीं पार कर पाया था लंका, तो वो जाके आए. ठीक है. फिर उसके बाद अगर आप वो देखो ना, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई. किसने बोला? भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संजीवनी, जब लाए सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लाके लखन उनको जिंदा करा था. तो भगवान ने क्या कहा था? लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर रघुवीर हर्षि उर लाए. उन इतने खुश हो गए
और कहते हैं सहस बदन सुमरो यश गावें। हनुमान जी को बोल रहे हैं सारे की सारी जो कायनात है आपका गुण गाए गए, सहज बदन तुमरो यश गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। फिर उन्होंने उनको हनुमान जी को गले लगा लिया, है ना। एंड व्हाट इज दिस, what is this? This is glorifying, this is the glorification of the Lord for Hanumanji. And he was trying to glorify Hanumanji. Hanumanji was not an ordinary devotee, he was an exceptional devotee. you know uh, there is an incident in the in uh, Ramayana, जहां पर जब हनुमान जी सीता सीता को पहली बार देखते हैं कि ये सीता है कि नहीं है, एक पत्ते के पीछे छुपे होते हैं, ठीक है। अब उनको समझ में आता है हाँ सीता है ये ना। तब अब वो कैसे उनको, अगर वो आ जाएंगे सामने तो सीता माँ को डर लग जाएगा। तो पत्ते के पीछे छुप के वो रामायण उन्होंने भगवान श्री राम के गुण गाने शुरू कर दिए पत्ते के पीछे छोटे से। अब सीता माँ ढूंढे कौन है यार इस जगह पे, ऐसी खतरनाक जगह पे कोई राम जी का नाम ले रहा है, कौन है। तो फिर धीरे से वो पत्ते के बाहर निकले तो सीता माँ ने देखा इतना छोटा सा, है ना, इतना छोटा सा कोई वानर है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, उन्होंने बताया मैं ये हूँ वो हूँ, काफी सारी बार उनको बताया, उनको अंगूठी दी जो भी है ना। फिर उसके बाद सीता माँ को फिर उन्होंने बोला कि चलो माँ मैं आपको लेके चलता हूँ। बोले तुम कैसे लेके जाओगे मुझे। तो उन्होंने एकदम बड़े हो गए वो, एकदम बोले हाँ माता माता आप मेरे कंधे पे बैठो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, यू नो मेरे को मेरे श्री राम ही आके छुड़ा के लेके जाएंगे, उनको जाके बोलो कि मैं उनका वेट कर रही हूँ। बोले ठीक है माँ मैं जाते हो। तो जाने लगे तो सीता माँ ने बोला कि यार तुम कभी इतने छोटे हो जाते हो, कभी तुम इतने बड़े हो जाते हो, तुम्हारा रूप असली असली साइज क्या है। तो आपको पता है हनुमान जी ने क्या बोला। हनुमान जी ने बोला माता मेरा असली साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान की कृपा से मैं कोई सा भी कितना भी बड़ा हो सकता हूँ। क्या बोला, मेरा एक्चुअल साइज बहुत छोटा है माता, लेकिन भगवान की सेवा के लिए और भगवान की कृपा से मैं कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनली मैं बहुत छोटा हूँ। ये जो इंसिडेंट है ये क्या बता रहा है, दिस इज ग्लोरीफाइंग द डिवोटी, डिवोटी और डिवोशनल क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, है ना। अभी ये जो चीज है यहाँ से हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं, जो मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ से। हाँ, अब इसको ना इसका दूसरी जगह जाओ। अब क्या भगवान ग्लोरीफाई इसलिए करते हैं ताकि अस हम लोग हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये हम अपनी फॉल्स ईगो से ऊपर उठें। अब कैसे, आप सोचो, जब हनुमान जी की हम बात सुनते हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं मैं बहुत छोटा हूँ, हमें क्या लगता है हनुमान जी से जैसा बंदा बोल रहा है मैं छोटा हूँ, और मेरे जैसा बंदा सोचता है पूरी यूनिवर्स मेरे आजू बाजू ही घूम रहा है ना। मेरा सारा यूनिवर्स मेरे आजू बाजू ही घूम रहा है। मेरी बीवी का कुछ नहीं होगा अगर मैं नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे का कुछ हो ही नहीं सकता अगर मैं नहीं होऊंगा, और वो तो छोड़ो मेरा तो पूरा बैंक मेरी वजह से चल रहा है, आपको पता नहीं है मित्रुल प्रभु, सब कुछ मेरी वजह से ही चल रहा है ना। फिर हमें क्या लगता है कि मैंने वोट दे दिया है तो, और एहसान कर दिया है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि मैंने मंदिर में दान कर दिया तो मैंने एहसान कर दिया। मतलब हम लोगों को क्या लगता है अगर हम अपना समय डिवोशन के लिए डिवोटीज के लिए दे रहे हैं तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको पता है मेरी वजह से तो कितने सारे लोग चल रहे हैं, है ना। और उसके ऊपर से कुछ लोग आके बोल देते हैं ब्रजेश प्रभु आप तो आप तो बहुत महान हो, आप प्लीज मेरे हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो। अब ये सारी चीजें आके क्या होता है फिर वो, अभी तो सिर इतना सा है, ठीक है, जैसे ही वो सुनाई देता है तो सिर इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद दो चार लोग और आके बोल देते हैं इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद इतना हैवी हो जाता है कि उठता ही नहीं है। हमें लगता है कि यार फिर कोई आके हमें बोलता है, कोई हमें आके ऐसे टच करता है ना थोड़ा सा तो हम नीचे गिर जाते हैं, क्यों, क्यों हमारा हाइट इतना बड़ा हो गया है, हमारा बैलेंस ही नहीं रहा, है ना। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि हमारा जो ईगो है ना सिर्फ, ये हम लोगों को वैसे रखना है जैसे हनुमान जी रखते हैं। हनुमान ऑब्वियसली हम वी कांट कंपेयर विद हनुमान जी, वी कांट बी लाइक हनुमान जी, बट वी शुड स्ट्राइव टू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी। तो द अदर रीजन जो मैंने शुरू में नहीं बताया, व्हाई कृष्णा ग्लोरीफाइज हिज डिवोटी, सो दैट वी कैन बिकम हम्बल, है ना। हमें क्या लगता है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, मेरे से गलती नहीं हो सकती। आप सोचो, हम्म, ये जो डेमिगॉड्स हैं ये कौन है,
भगवान के भक्त हैं ओरिजिनली, है ना, भगवान के भक्त हैं और बहुत ही अच्छे डिवोटीज हैं वो लोग। फिर क्या होता है, उनमें मिश्र भक्ति होती है, इसलिए ये डेमीगॉड्स बन जाते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड डेमीगॉड आपको पता है कौन है? इंद्रा। इंद्रा कौन है? उसको बोलते हैं राजा, सारे डेमीगॉड्स के राजा हैं इंद्र। अब इंद्र कोई, इंद्र को कैसे कैसे भगवान ने यूज करा, आप सोचो। मतलब उनको देख के कई बार हम लोग सोचते होंगे ना कि क्या है यार, कैसा कैरेक्टर है यार, इसको कुछ भी अकल नहीं है यार, इसको जब देखो जब कुछ भी कर दो ये इसको समझ में ही नहीं आता है ना। अभी अभी उनको थप्पड़ पड़े थे जब वो वृंदावन को डुबाने गए थे, और बाद में उन्होंने वही चीज कर दी वहां पर, क्या बोलते हैं, एरावत में अपने अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, है ना। उन गुरु ने उनको माला दी, अपने हाथी को दे दी, हाथी ने उसको कुचल दिया, उनको श्राप मिल गया। और फिर उनको वो बन गए, सुअर बन गए। अब वो सुअर बन गए, तो अब सुअर बन रहे थे, उन आराम से अपने बच्चों के साथ कीचड़ में सो रहे थे। फिर ब्रह्मा जी काफी टाइम बाद आए, बोले ठीक है, हो कि आपकी वो पूरी हो गई है, सजा पूरी हो गई है, आप वापस चलो, अपने आपका सिंहासन संभालो। किसका सिंहासन? हेड ऑफ डेमीगॉड्स। कहता नहीं 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 नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, ये देखो मेरी वाइफ सो रही है, पता नहीं कौन है इनमें से, लेकिन ये है यहीं पर है, मेरी वाइफ कहीं है। मतलब वो, क्योंकि पिग्स मेक आउट विद एनीवन, है ना, तो उन्हें मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे, आई एम वेरी हैप्पी है, मेरे को नहीं जाना वापस। दिस इज द एंड। फिर उनको वहां से, अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जो डेमिगॉड्स के हेड है, वो उसकी ये हालत है ना। अब नाउ व्हाट इज इट, व्हाट इज कृष्णा वांट्स टू टेल अस थ्रू दिस? ही वांट्स टू टेल अस कि humility, we need to develop humility. This is the other reason why Krishna glorifies his devotee, so that we can actually understand कि हमें क्या करना है। बस हम लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि we don't have to become like these devotees, but we need to aspire to have those qualities. And what is the way to have those qualities? What is the best way to have those qualities? सर्विस प्रभु जी। सर्विस, यस, बट सर्विस कैसी? भूखों को खाना खिलाना? नहीं, प्रीचिंग। प्रीचिंग, यस, दैट्स करेक्ट। सेवा, भक्ति योगा, कोई सा भी भक्ति योगा करो। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑल वी हैव टू डू इज नित्य नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या। सबसे पहले हम रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ो, भले ही आप 4 लाइनें पढ़ो, ठीक है, डेली श्रीमद् भागवतम पढ़ो, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। फिर ABCD, ठीक है, ए से क्या होता है? एसोसिएशन, एसोसिएशन। एसोसिएशन। और बी से क्या होता है? Books. बुक्स, बुक्स। अपना श्रीमद् भागवतम। सी से क्या होता है? चैंटिंग। चैंटिंग। और डी से क्या होता है? डिवोशनल सर्विस। Worship. है? डीटी Deity डीटी worship. डाइट ऑफ और कृष्ण। डाइट, हाँ, डीटी डाइट। वर्शिप एंड डाइट बोथ, है ना। तो अगर हम ये करेंगे तो वी विल डेफिनेटली हैव दोज क्वालिटीज ऑफ दिस भक्ता। ये हमारे कलयुग में कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्य था। बहुत ही आसान तरीका है हमको इससे आगे निकलने का। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग भी लोग, हमें भी दूसरे डिवोटीज की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब, यार, जैसे कई बार हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा मंदिर में, यार, पीपल आर नॉट ऑथेंटिक ऑथेंटिक। दे से ओ प्रभु जी यू आर ग्रेट, बट उनको उनको देख के आपको पता चलेगा ही डजंट रियली मीन इट, ही हैज नो आइडिया व्हाट ही इज सेइंग, हैज नो आइडिया, पीपल डोंट रियली मीन इट, दे से यू आर ग्रेट। हाँ, वी शुड हैव ग्रेटफुलनेस, बट आवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ अदर डिवोटी शुड बी ऑथेंटिक, ठीक है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है, अगर आप किसी पर्सन को उसकी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ग्लोरीफाई कर दोगे तो क्या होगा, आप बताओ? व्हाट विल हैपन टू? फॉल्स ईगो बढ़ जाएगा उस फॉल्स बंदे ईगो में। बढ़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, देव हम्म। मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। अगर आप उनको उनकी रिक्वायर्ड ग्लोरिफिकेशन से कम दोगे तो क्या होगा? वही होगा प्रभु जी। है? तो वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव या ना, इफेक्ट। डिमोटिवेट। डिमोटिवेट, हाँ बिल्कुल सही बोला मित्र ब्रो। डिमोटिवेट हो जाएंगे वो लोग डिमोटिवेट होकर सोचेंगे, अरे यार ये क्या है यार, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, कोई कोई मतलब कोई मुझे वही नहीं करता है। तो आप उनको ग्लोरीफाई करो, बट डू इट ऑथेंटिकली, डू इट इन ऑथेंटिक मैनर। जितना आपको लगता है उन्होंने करा है उतना ही आप करो। चलो, कई बार हमें लगता है, कई बार हम लोगों को लगता है कि हाँ यार कोई पर्सन बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो हम लोग उसकी तारीफ करे जाते हैं, विच इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू नो दैट आप उसकी तारीफ फालतू में नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग
glorification because you really mean it. And the best glorification that you can do is when you are doing in front as well as at the behind their back, है ना? सबके सामने से ज्यादा अच्छा उनके पीछे, you can glorify behind them. क्योंकि कई बार क्या होता है, when you glorify them in front of them, sometimes it is hard to fathom it. लोगों से हैंडल नहीं होती है. एंड यू नो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कई बार मेरे को भी जब मेरी तारीफ सुनाई देती है ना, तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है, वाह, वेरी गुड, मजा आ गया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? हम लोगों को बताया गया है कि हम अपनी अपनी सारी की सारी जो ग्लोरिफिकेशन है वो आगे पास कर दें अपने गुरु को। लेकिन आपको पता है, गुरु को पास करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट तो ले लूं, फिर देता हूँ गुरु को। ये आ जाता है दिमाग में। हाँ ठीक है भैया, तारीफ कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है यार, आई एम डूइंग इट, ये आई शुड टेक इट। नो, रिमेंबर, if if we don't glorify other devotees, we will fall down. But if we glorify someone and if they take the glorification, they will fall down. And it is a very very dangerous thing. Preaching, when you get to preaching, when you are especially preaching में, और उसके अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल, someone is a amazing devotee, जैसे जयदेव प्रभु हैं अपने, नंद दुलाल प्रभु हैं, ये लोग अमेजिंग डिवोटीज हैं, इनको हर कोई जानता है, हर कोई, एवरीबडी नोज दे आर अमेजिंग डिवोटीज, ठीक है? अ, लेकिन इनके सामने आप तारीफ करके देखना, इनको इनको कोई, दे डोंट इवन एक्नॉलेज इट, और वो उल्टा तारीफ कर देंगे। अरे प्रभु, आपने क्या मस्त सेवा करी, अरे प्रभु ये सब ना, ये मेरे को आपको कैसे बताऊं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, इन्होंने मेरे को सिखाया मार मार के, आपको पता है, और आप लोग अभी देख के थोड़ा थोड़ा मुझे बता के आप लोगों ने सिखाया। तो व्हाट दे डू इज दे सड इंस्टेंटली, जैसे होता है ना कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता है, वैसे ही इन डिवोटीज के ऊपर कोई भी सेल्फ प्रेज का कोई पानी टिकता ही नहीं। एंड दिस इज द स्टेज वेयर वी हैव टू गेट टू। लेकिन please, 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 it is a humble request, don't try to become like one straight away. uh, हम लोगों को क्या करना है, we have to understand that self love is there, we need to have self love as well, है ना? ऐसा नहीं कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, प्लीज यार मिथिल प्रभु यार ऐसे मत बोला करो, आई डोंट लाइक इट। यार एक सामने वाला आपकी तारीफ कर रहा है, इफ आई एम रियली गेटिंग एंग्री बिकॉज मुझे लगता है आई विल हैव अ बिग हेड, then you should talk to your Guru Maharaj, talk to your peers and say, hey, you know what, please help me. I'm getting this big head, help me. है ना? Rather than मिथिल प्रभु को डांटने, मिथिल प्रभु मेरी तारीफ मत करो यार, आपके कारण मैं आई फॉल डाउन, आपके कारण ही मेरा फॉल डाउन होता है। अब यार इसमें मिथिल प्रभु की क्या गलती है? इज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है कुछ, वो तारीफ कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अस एज डिवोटी वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ग्लोरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, भगवान इज द रीजन वाई वी कैन ग्लोरीफाई अदर पीपल, है ना? और भगवान अगर हमारे अंदर कोई इंस्पिरेशन दे रहा है जिसकी वजह से हमें कोई डिवोटी अच्छा लग रहा है, दैट इज ए इंस्पिरेशन फ्रॉम द लॉर्ड टू अस, so that we can glorify. So when we glorify other devotees, we will get that qualities. We will start, not instantly, we will get that small little taste of those qualities. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, when we actually get, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले कोई बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ, दे सेड टू मी, ओ प्रभु आपकी क्लासेस में ना जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। अब मेरे को पता है मेरे कोई एग्जाम्पल है नहीं, है ना, सारे टीपे हुए हैं एग्जाम्पल, है ना? तो मेरे दिमाग में क्या आया, उस वक्त मैंने कहा हाँ यार ये बात तो ठीक है, क्योंकि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, दैट मीन्स दे लाइक दीज एग्जांपल्स। तो अब मैंने क्या शुरू कर दिया है, आई एम लुकिंग फॉर एग्जांपल्स एवरी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, कहीं ना कहीं से मैं हर चीज सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल आता है फटाफट लिख लेता हूँ, है ना? क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू, आई थिंक कि उन्होंने जो मेरी तारीफ करी है, दिस इज एन इंडिकेशन फ्रॉम द लॉर्ड टू मी टू इंक्लूड मोर एग्जाम्पल सो दैट आई कैन सर्व बेटर। ठीक है? अभी क्या हुआ, ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये क्या हुआ कि मैंने बोला अच्छा दिस इज द एक्सपेक्टेशन, अच्छा प्रीचर से ये एक्सपेक्टेशन है, ओके देन आई हैव टू। तो कई बार कुछ डिवोटी बोलते हैं ना कि आपने जो मेरी इतनी तारीफ करी है, दिस इज एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस फॉर मी, यू वांट मी टू बी लाइक दैट, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी लाइक दैट। दिस इज अनदर वे ऑफ डीलिंग विद दिस। सो
विल स्टॉप हेयर। तो हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ग्लोरिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉर्ड। लॉर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, जैसे फादर लाइक्स टू सी हिज सन बिकम मोस्ट फेमस, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे, भीष्म देव का अभी ऑब्वियसली चल ही रहा है। फिर हमने देखा एग्जाम्पल अर्जुन का, अर्जुन को कैसे भगवान ने ग्लोरीफाई कराया। फिर हम लोगों ने देखा प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने लॉर्ड शिवा वाला एग्जाम्पल देखा। ब्रह्मा विमोन लीला वाला एग्जाम्पल देखा। फिर हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल देखा। और फिर हम लोगों ने देखा कि why God is doing this is he wants to motivate us to keep doing bhakti, and he is actually glorifying, he wants these devotees to be glorified so that we can get inspired by these glorification, and then अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन डिवोटीज की चीजें सुनेंगे, we will get purified and it will be easier for us to go back home, back to Godhead. Okay, we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. Anybody has any questions, any comments? ओके, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय. कृष्ण प्रभु. हरे कृष्णा.